ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری سکولز میں غیر میسر سہولیات اور 9 سکولز میں اضافی کمروں کی تعمیر کے لیے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کر دیے۔ ضلع بھر کے سرکاری سکولز 5 کروڑ روپے سے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور 2 کروڑ 94 لاکھ روپے مالیت سے 9 سرکاری سکولز میں کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا پنجاب حکومت کی طرف سے جاری فنڈنگ سے کن سکولز میں اضافی کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے اور کیا کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی؟ جی، ضلع بھر کے اکثر ایسے سرکاری سکولز ہیں جن میں مسنگ فیسلٹیز ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے رواں سال کے بجٹ میں فیصل آباد ڈویژن کے لیے فیصل آباد کے جو ضلع بھر میں سکولز ہیں ان کے لیے مجموعی طور پر جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کر رکھے ہیں، جبکہ جو فیصل آباد کے 9 سکولز ہیں جن میں اضافی کمروں کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 94 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے جو مختلف سرکاری سکولز ہیں ان میں 4 سے 6 کمرے اضافی بنائے جائیں گے، جن میں سب سے جو مین فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں سرکاری سکولز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی کمی ہے، اس کے علاوہ مختلف فرنیچرز کی بھی بعض سکولز میں کمی ہے، اس کے علاوہ اور جو بیسک فیسلٹیز ہیں سکولز میں ان کی کمی کے لیے مجموعی طور پر جو 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے یہ ایسے سکولز میں لگائے جائیں گے جہاں ابھی تک پینے کے پانی کی سہولیات میسر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ اور جو مسنگ فیسلٹیز ہیں سکولز میں ان پر یہ خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو 9 سکولز ہیں جن میں اضافی کمرے تعمیر کیے جائیں گے ان میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 258 ریلوے میں پرائمری سکولز ہیں جس میں 18 لاکھ روپے کی مالیت سے نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول شاہی چوک غلام حمد آباد میں 64 لاکھ روپے سے نئے کلاس روم تعمیر کیے جائیں گے جہاں پہلے بچوں کو کمروں کی فیسلٹی کم ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جڑا والا میں 20 لاکھ روپے کی مالیت سے 4 نئے کلاس روم تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول 279 ریلوے فیصل آباد میں بھی 4 نئے اضافی کمرے تعمیر کیے جائیں گے جس کے لیے 27 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول 124 جی میں مرزی پورہ کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جو 4 اضافی کمرے تعمیر کیے جائیں گے اس کے لیے 28 لاکھ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 21 گافے جنوالا میں ہے واقع ہے، اس میں پرائمری کا جو بلاک ہے وہ تعمیر کیا جائے گا جس کے لیے 30 لاکھ روپے مالیت کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایم سی ضیاء الاسلام گرلز ہائی اسکول بٹالہ کالونی میں واقع ہے جہاں 7 اضافی کلاس رومز بنائے جائیں گے، 1 ہال تعمیر کیا جائے گا اور وہاں پر جو لیب ہے سائنس لیب اس میں سامان فراہم کیا جائے گا جس کے مجموعی طور پر 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 224 ریلوے وزیر خان والا اور اسی علاقے کے جو بوائز اسکول ہے اس میں 25 لاکھ روپے مالیت سے 6 اضافی کلاس روم تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایم سی بوائز ایلیمنٹری اسکول ہے ملت کالونی فیصل آباد میں، اس میں 25 لاکھ روپے کی مالیت سے اس اسکول کی جو خطرناک عمارت ہے اس کی اثر نو تعمیر کی جائے گی۔ تو مجموعی طور پر جو غیر میسر سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے لیے اور یہ 9 جو سکولز ہیں ان میں اضافی کلاس روم کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 7 کروڑ روپے اور 94 لاکھ جو فنڈ ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں جن سے رواں سال ان سکولز میں فیسلٹیز بھی فراہم کی جائیں گی اور جو بچوں کو کلاس روم کی کمی کا سامنا ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی جہانگیر، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری سکولز میں غیر میسر سہولیات اور 9 سکولز میں اضافی کمروں کی تعمیر کے لیے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کر دیے۔ ضلع بھر کے سرکاری سکولز 5 کروڑ روپے سے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور 2 کروڑ 94 لاکھ روپے مالیت سے 9 سرکاری سکولز میں کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد شہر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ نیو سول لائن کی ٹنکی والی روڈ اور کمشنر آفس کے بیرونی دیوار کے ساتھ پانی قابض، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اللہ صبح جب فیصل آباد میں بارش شروع ہوئی تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گزشتہ روز ہبس اور گرمی کی وجہ سے جو انہوں نے دکھ اور اذیت کاٹی اس کی وجہ سے جب بارش ہوئی تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ لیکن یہ ابر رحمت تب ابر زحمت بن گئی جب شہر کی گلی اور چوراہوں کے اندر جو پانی تھا بارش کا وہ دندرانے لگا۔ دھوپ نکلا ہی ہے ہلکی ہلکی، بادلوں کی اور سے سورج ہی باہر آ گیا ہے لیکن پانی ابھی تک سڑک پہ قابض ہے۔ اور میں اس وقت کمشنر آفس کی بیک سائڈ پہ موجود ہوں، میرے ساتھ نیو سول لائن کا ایریا ہے، ٹینکی والا روڈ ہے، وہ بھی پانی سے مکمل طور پر ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ کمشنر آفس کی بیک سائڈ پہ اگر کیمرامین قمر آپ کو دکھا سکے تو دیکھیں برساتی نالا تو بنایا گیا ہے لیکن برساتی نالے کے لیے جو پائپ ہے پانی کے اخراج کے لیے وہ سطح زمین سے 1.5 سے 2 فٹ اونچا ہے۔ یہ کمشنر آفس کی دیوار ہے بیک سائڈ والی
अगर कमिश्नर ऑफिस सरकार की नाक के नीचे ये काम होंगे तो शहरी जो आम शहरी हैं उनका क्या हाल होगा। जबकि ये जो गटर हैं, कमर आपको दिखाए तो ये मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो होके ये सड़क से अंदर पानी ले जाने के बजाय सड़क के ऊपर फेंक रहा है। ओवरफ्लो होकर सड़क के ऊपर पानी आ रहा है तो पानी निकलेगा क्या? ये तो पानी सड़क के ऊपर और खड़ा होना शुरू हो गया है। तो शहरी कहते हैं कि आबरे रहमत पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ज़िला हुकाम और जो डिस्ट्रिक्ट हुकूमत है फैसलाबाद की, कमिश्नर DCO, उन्होंने हमारे लिए ये आबरे जहमत ये जहमत बना दी है बारिश, और हमारे लिए यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो गया है। अगर सरकार की खुद चार दीवारी के इर्द गिर्द ये हाल होगा तो आम शहर की जो बाकी गलियां हैं वो तो यकीनन नदी नालों का मंजर पेश करेंगी, और उनके अंदर जो पानी खड़ा है, जो निकासी का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, वो कौन ठीक करेगा? जब कमिश्नर ऑफिस की बिल्कुल बैक दीवार जिसके साथ गेट भी है, सरकारी अफसरान के दफातर भी हैं, अगर वहाँ से पानी जो बरसाती नाले का ये हाल है और पानी का अखराज नामुमकिन है तो फिर बाकी शहर का क्या हाल होगा? कोई जिला इंतजामिया का दायरा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। वासा और दीगर जो अदारे हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि जैसे ही मानसून शुरू होगा उनके जो निज़ाम है वो मुकम्मल रहेगा और फुल प्रूफ जो पानी है किसी सड़क पर खड़ा नहीं होने देगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ अक्स नज़र आता है। सड़क पे हर जगह पानी पानी है और शहरियों का मुतालबा है कि ज़िला हुकूमत पहले तो अपना भी ये जो पानी खड़ा है सड़क के साथ मुलेका उनकी दीवारों के साथ, इसकी भी निकास मुनासिब बनाया जाए, और ये जो बरसाती नाला है इसको भी इंजीनियर को कहे कि वो मुनासिब तौर पर जो इसकी निकासी का सिस्टम है उसे ठीक करे ताकि उनको अजियत से बचाया जा सके। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, जिला इंतजामिया के अफसरान 7 मीटिंग्स में 11 लाख का खाना खा गए। ऑडिट ने एतराज उठा दिया। जी हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र किए गए कानून के मुताबिक अफसरान मीटिंग में सिर्फ चाय और बिस्किट खा सकते थे, जबकि एक मीटिंग में खाने का 3,15,980 रुपए बिल बन गया। जी हाँ, मामला गुज़श्ता मुतल्लिका DDO के नोटिस में लाने के बावजूद ताहाल कोई जवाब ना मिला। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान के जो खानों पर शाहाना अखराजात हैं उनकी कहानी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये एतराज़ उठाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 7 मीटिंग्स में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान 11 लाख का खाना खा गए हैं, और इन मीटिंग्स में 100 से ज़ायद 190 और 200 अफसरान की शिरकत भी जाहिर की गई है, जो कि ऑडिट ने पैरा लगाया है। ऑडिट ने जो रूल्स की निशानदेही की है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक मीटिंग के दौरान अफसरान को चाय और बिस्किट सर्व किए जा सकते थे, लेकिन अफसरान जो है वो खाना खाते रहे, और खाना भी इतना महंगा कि जिसका बिल 11 लाख बन चुका है। पता नहीं, मालूम नहीं कि इस खाने में क्या मुर्ग मुसल्लम, क्या दावतें उठती रही हैं, और 200 अफसरान एक मीटिंग में शामिल होते रहे हैं, और अभी तक हमारे तो नोटिस में नहीं आया कि ऐसी कौन सी मीटिंग हो सकती है कि जिसमें 200 अफसरान शामिल हों, और मालूम नहीं कि मैं अहलो अयाल मीटिंग करते रहे हैं ये, या कि कोई बारात जैसा मंजर होता होगा। जबकि अब तो शहरी इतने मसरूफ़ होते हैं कि बारातों में भी इतनी तादाद नहीं होती, जबकि अफसरान 200 की तादाद में, 190 की तादाद में और 195 अफसरान भी मुख्तलिफ मीटिंग्स में शामिल होते रहे हैं। इनमें से 5 मीटिंग्स जो हैं वो साल 2016 में हुई हैं, जनवरी से लेकर जून के इब्तिदा तक, आगाज़ तक, जबकि 2 मीटिंग्स जो हैं वो साल 2015 के इख्तितामी माह नवंबर और दिसंबर में होती रही हैं। एक मीटिंग ऐसी भी हुई है जिसका बिल 3,15,980 रुपये बना है, जबकि दीगर जो 6 मीटिंग्स हैं उनका बिल मिलाकर कुल जो है बनी है अमाउंट 11,01,928 रुपये बनी है, जिस पर ऑडिट की जानिब से ऑडिट पैरा लगाया गया है, एतराज़ लगाया गया है, और गुज़श्ता माह मुतल्लिका जो DDO हैं उनके नोटिस में लाया गया था और इसका जवाब तलब किया गया था, जबकि अभी तक कोई जवाब नहीं तलब दिया गया। अगर हम बात करें कायद के पाकिस्तान की, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि एक मीटिंग के दौरान कायद आज़म से ये बात उनके सर्वेंट ने पूछी कि जी अफसरान को क्या सर्व किया जाएगा, चाय दी जाएगी या बिस्किट या इसके अलावा कुछ, तो कायद आज़म की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं और इनको माहाना पे दी जाती है गवर्नमेंट के ख़जाने से, लिहाजा ये अपने चाय और बिस्किट अपनी पॉकेट से पियेंगे। और दूसरी जानब अब फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं जिन्होंने 7 मीटिंग्स में खाने पर 11 लाख का बिल अदा किया, मुर्ग मुसल्लम खाते रहे। गो के पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स में तब्दीली आती रही मुख्तलिफ औकात में,
तो कुछ ना सर्व करने की बजाय चाय और बिस्किट सर्व करने के रूल्स पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए और ये परमिशन दी गई कि मीटिंग में अफसरान को चाय और बिस्किट सर्व किए जाएं। लेकिन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ 7 मीटिंग्स में 11 लाख से जायद का बिल बना, 11 लाख से जायद का खाना खाया गया, लंच बक्सेस जो हैं वो सर्व होते रहे। एक जानब फैसलाबाद के वो गरीब शहरी हैं जो कचरे के ढेर पर चीलों, कौवों और गिद्धों की तरह झपटते हैं, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती, और दूसरी तरफ वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो अफसरान हैं जिनके शहाना खर्च जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। 11 लाख से जायद का खाना एक लिमिट होती है, एक हद होती है। 200 अफसरान मीटिंग में शरीक हो रहे हैं, 190 अफसरान, 195 अफसरान, 180 अफसरान, और वो खाना भी पता नहीं फैसलाबाद के किस होटल से आता रहा है, इतना महंगा कि एक खाने एक मीटिंग के दौरान 3 लाख से जायद का बिल बना, जबकि बाकी अगर 6 मीटिंग्स का वो भी शामिल कर लिया जाए तो 11 लाख से जायद की कुल रकम बनती है ये। जी आसिफ, ये बताइएगा कि एक जानिब जिला इंतजामिया ने तरक्याती कामों के फंड्स में जो है कटौती कर दी थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी जानिब 7 मीटिंग्स, खाना 11 लाख का। जी बिल्कुल, तरक्याती फंड्स के लिए इनके पास, फैसलाबाद जिले इंतजामिया के पास बजट नहीं था, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जो शहरियों की सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी थी 10%, उनकी मद में रकम नहीं दी गई थी, तो इसको जवाब बनाकर तरक्याती फंड का बजट काट कर मुलाजमों की तनख्वाहों के लिए पूरा किया गया। दूसरी जानब जो दफातर के शहाना अखराजात हैं, खाने हैं, चाय बिस्किट्स हैं, उन पर कोई कटौती नहीं लग सकती, क्योंकि गुज़श्ता 7 मीटिंग्स जो हैं 2016 के आगाज़ में, चूँकि वो गुज़श्ता माली बजट था, उसमें 11 लाख का खाना ही 7 मीटिंग्स में सर्व हुआ। अब भी उसी रूटीन के मुताबिक रखा गया है, बहुत हैवी एक्सपेंडिचर रखे गए हैं दफातर में इस्तेमाल होने वाली चाय मीटिंग्स और इसके साथ साथ खानों के लिए। लेकिन फैसलाबाद का जो तरक्याती बजट है वो 129 बिलियन सिर्फ रखा गया है, ये तकरीबन 13 करोड़ की अमाउंट बनती है। एक जानब ये 13 करोड़ हैं और दूसरी जानब अफसरान के खाने हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस पर अल्टीमेटली आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है। इतनी भारी अमाउंट जो है वो खानों दावतों के लिए रखी जाती है, जबकि इन मीटिंग्स में 200 अफसरान शरीक होते रहे हैं। मालूम नहीं ये मीटिंग्स कहाँ होती रही हैं, ज़मीन पर और दफातर में तो हमने ये मीटिंग्स होती हुई हमें तो दिखाई नहीं दी आज तक। ये 200 अफसरान की कहाँ मीटिंग्स होती रही हैं। शायद बमै अहलो याल और दीगर जो अजीज़ो कारब थे उनको मीटिंग्स में शामिल करते रहे, या कोई शादी जैसा मंजर होता होगा, बारात आती होगी मीटिंग्स के लिए अफसरान की, पूरे पंजाब से बाकी अफसरान भी शामिल होते रहे हैं, फिर अंदाज़ा हो सकता है कि 200 अफसरान शामिल होते हों, जबकि इनका जो बिल है वो 11 लाख से जायद बन चुका है। कवानीन की खिलाफ वर्जी ऑडिट पैरे के मुताबिक जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं ऑडिट पैरे में, उसके मुताबिक अफसरान को सिर्फ चाय और बिस्किट की परमिशन थी जो वो ड्यूरिंग मीटिंग उनको सर्व किए जाने थे। लेकिन इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए खाने जो हैं वो पेश होते रहे, जिनका बिल 11 लाख बना, जिस पर ऑडिट की जानिब से पैरा लगा दिया गया, एतराज़ उठाया गया है कि ये क्यों इतने हैवी एक्सपेंडिचर जो है वो खानों पर लगाए गए हैं, इसका जवाब दिया जाए। जबकि गुज़श्ता माह से जो मुतलका डीडीओ हैं उनकी जानिब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया। जी आसिफ, बिल्कुल, न जाने कहीं और ये मीटिंग्स हुई या नहीं, कागज पर ये मीटिंग जरूर हुई हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला इंतजामिया के अफसरान 7 मीटिंग्स में 11 लाख का खाना खा गए, ऑडिट ने एतराज उठा दिया। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके के मदरसे का तालिबे इल्म 24वें रोजे से लापता है। 16 साल तैमूर कसूर से पढ़ने के लिए फैसलाबाद आया था, ना मदरसा पहुंचा और ना ही घर। मजीद इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा कि बच्चे के लापता होने पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है कि फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके के मदरसे का तालिबे इल्म 24वें रोजे से लापता है। बिल्कुल, फैसलाबाद में जो बच्चों की अगवा की बढ़ती ही वारदातों में मुसलसल जो है इजाफा होता जा रहा है, तो ये भी जो वाकया पेश आया है थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका मदरसे का तालिबे इल्म 16 साल जो तैमूर है 24 रोज से लापता है। इसके वालिद करामत का ये कहना है कि 24 रोज कबल इसको मैंने जो ड्राइवर के साथ भिजवाया था गाड़ी में बिठाकर मदरसे के लिए, लेकिन जो ड्राइवर अख्तर है उसने जो अपना मौक़िफ़ दिया है कि मैंने जो 16 साल तैमूर है उसको GDS चौक में उतार दिया था, लेकिन उसके बाद बच्चे से कोई भी इसके जो वालिदैन है उनका राब्ता नहीं हो सका है।
तो उसके वालिद ने जो थाना कसूर में भी जो है दरखास्त दायर की, लेकिन वहां से भी कुछ ना बना। जो जैसे कि तस्वीर भी देखी जा सकती है 16 साल तैमूर की। तो उसके बाद जो उसके वालिद करामत है वो थाना पीपल्स कॉलोनी में पहुंच गया, दरखास्त यहाँ पर भी दायर दरखास्त दे दी। लेकिन करामत का यही कहना है कि अभी तक पुलिस की जानब से कोई भी ऐसे जो इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, मेरे बच्चे को जो है तलाश करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ दरखास्त तक ही जो मामला महदूद, अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। तो फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका मुस्लिम टाउन में वाक़या जो मदरसा दारुल कुरान है, वहाँ पर जेर तालीम था जो 16 साल तैमूर है, लेकिन 24 रोज गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। तो उसका वालिद का ये कहना कि 24 रोज जो कबल उसको मदरसे में भेजा था, लेकिन ना वो मदरसे में पहुंचा और ना ही वो वापस घर पहुंचा है। इसी वाले से उसने जो आरपीओ बिलाल सिंह कन्याना से मुतालबा भी किया है कि मेरे बच्चे की तलाश में मेरी मदद की जाए। तो फैसलाबाद जो पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। बच्चों के लापता होने के वाक़यात, अगवा के जो वाक़यात हैं, उनमें मुसलसल जो इजाफा होता जा रहा है। आईजी पंजाब की जानिब से भी जो अहकाम जारी किए गए थे कि जैसे ही कोई दरखास्त लेकर आए, कोई एप्लीकेशन लेकर आए कि बच्चे के लापता होने की, तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन 24 रोज गुजर चुके हैं फैसलाबाद में, लेकिन अभी तक जो मुकदमा है वही दर्ज नहीं किया जा सका। जी मोहम्मद काशिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके के मदरसे का तालिबे इल्म 24वें रोज से लापता है, जबकि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ही अब तक मुकदमा दर्ज किया गया है। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शेखपुरा रोड से मुल्हिका अजहर टाउन तालाब का मंजर पेश करने लगा। कॉलोनी में सीवरेज का इंतजाम भी नाकिस है। इस वक्त नेमताबाद रोड से मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा, जबकि दूसरी जानिब शेखपुरा रोड से मौजूद है मुकीत मलिक। पहले बढ़ते हैं मुकीत की जानिब। जी मुकीत, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। टाउन में जो कि शेखपुरा रोड से मुल्हिका टाउन है, यहाँ पर सीवरेज का इंतहाई नाकस इंतज़ाम है। सुबह होने वाली बारिश की वजह से यहाँ पर जो मामलात हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ गए, चूँकि यहाँ पर सीवरेज का नाकस इंतज़ाम है, जिसकी वजह से जो सुबह बारिश हुई है उस बारिश ने यहाँ पर जोहड़ और तालाब का मंजर पेश करना शुरू कर दिया, जिस हवाले से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से इनका ये कहना है कि यहाँ पर सूरत हाल इतनी नाकस है कि हम यहाँ से गुजर भी नहीं पाते और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल हम घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। वहाँ से गुजरना भी हमारा मुहाल है, हत्ता के मसाजिद का रुख करने के लिए भी हम यहाँ से कासिर हैं। तो इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो यहाँ पर जो सीवरेज का नाकस इंतज़ाम है, तो जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको क्या मुश्किलात, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें इधर गुजरना भी बहुत मुश्किल है। जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो टेंशन होती है उनको। दूसरा ये है कि जब इधर फौतगी होती है वो रखने के लिए जगह नहीं है। तकरीबन 6 माह से ये मसला चल रहा है। वासा वाले आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, फिर वो 15 मिनट के बाद वैसे ही पानी इधर खड़ा हो जाता है। ये जो लैंड डेड हो गई है, मियां इरफान साहब वासा वाले उन्होंने भेजे हैं लोग, लेकिन वो कोई काम नहीं आए। उन्होंने रिपोर्ट भी दी कि यार ये लैंड डेड हो गई है, लेकिन वो लाइन नहीं डाल रहे। ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारे MNA से, MPA से कि ये मेरे को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये इधर बीमारियाँ बहुत हो गई हैं। ये डेंगू तो लोग कहते हैं कि यार डेंगू नहीं, इधर तो घर घर में डेंगू आ गया है। हमें वो प्रॉब्लम काफ़ी चाह रहा है। बच्चे हैं, बच्चों के पाँव और बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ ये बहुत हो गई हैं। तो प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका कोई हल करे। ये बहुत लोग बहुत तंग है, ये अवाम आपके सामने है, घर घर जाके पूछ सकते हैं। मकान पिछले दिनों में एक मकान भी गिरा, इधर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, दीवारें फट गई हैं, घर घर में पानी चला गया, लेकिन इसका किसी ने हल नहीं किया। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये 24 चैनल और C41 वाले भी भाई आए हैं, लेकिन हमने सबसे रिक्वेस्ट की है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। तो आपसे ये प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मियां इरफान साहब से भी है, मियां अमनान साहब से है, हमसे जो है हमारे लायक हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारा मसला हल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है जीना तो जीना, मरना भी दुश्वार हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई मर जाता है तो उसका जनाजा भी यहाँ से लेकर गुजरना मुहाल है।
आप खुद अंदाज़ा करें कि कांधों पर जनाजा हो और हाथों में जूते पकड़े हों तो वो क्या ही मंजर पेश करेगा। तो इस हवाले से इनको सख्त मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो मियाँ अरफान मनान जो कि वासा के वाइस चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए उनके हवाले से। इनका कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं खुद साख्ता काम करने के लिए। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मशीन लगाई गई है यहाँ से पानी निकालने के लिए। ये अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने यहाँ पर मशीन मंगवाई है और इस मशीन के ज़रिए से ये पानी खुद निकाल रहे हैं यहाँ पर, जबकि कोई वासा का चेयरमैन, वासा की कोई टीम यहाँ पर नहीं आई और ना ही इस पानी को, ये घरेलू गंदा पानी है जो यहाँ पर मौजूद रहता है, यहाँ पर जमा रहता है। और इनका कहना है कि 3-3 माह तक ये पानी इन गलियों में मौजूद रहता है। रात के वक्त अगर पानी निकल जाता है तो सुबह दोबारा से वो पानी जो घरेलू गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाता है, जिसके वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलते हैं। यूँ इनका कहना है कि वैसे तो डेंगू के हवाले से बहुत सारी मुहिम्मात चलाई जा रही हैं, बहुत सारे सेमिनार्स का इनकाद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद पानी है, ख्वाह वो बारिश का है, ख्वाह वो सीवरेज का है, क्या वो मसाइल नहीं पैदा कर रहा? क्या उससे बीमारियां पैदा नहीं हो रही? क्या उससे हमारे बच्चे बीमार नहीं होते? तो इनका मुतालबा है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द सीवरेज के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और जो बारिश का पानी है उसकी निकासी का ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाए ताकि मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। जी मुकीद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब नेमताबाद में रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ये एक मेन शाहराह है, झंग रोड से निकलती है, सैफाबाद से होता हुआ ये एक बड़ा रोड है। यहाँ पर मजमूई तौर पर इर्द गिर्द इसके 5 से 6 बड़ी कॉलोनीज़ हैं, जिनमें हबीब पार्क है, सिराजिया कॉलोनी है, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलोनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक अहम शाहराह है, यहाँ पे खचाखच भरी रहती है, लेकिन यहाँ पे सीवरेज और बारिश के पानी का इस वक्त राज मौजूद है, जिसकी वजह से अहले इलाका को, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आज एक दिन की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जब भी मामूली सी बारिश भी इस इलाके में हो जाती है उसके बाद सीवरेज का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर धर्म भरम नजर आता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि इर्द गिर्द जो दुकान हैं, जो कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, उनको भी यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इर्द गिर्द यहाँ पे फुटपाथ मौजूद है, जहाँ पर से अहले इलाका जो है यहाँ मोटरसाइकिल तक गुजारने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का ये मसला जो है अरसा दराज से है, जिसकी वजह से सड़क भी जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है, खड्डे पड़ चुके हैं। तो उस वक्त जब पानी खड़ा होता है तो यहाँ से गुजरना जो है वो अहले इलाका के लिए यकीनी तौर पर मुहाल नजर आता है। अहले इलाका का ये कहना है कि यहाँ पे सीवरेज लाइन जो है वो 2005 के अवाइल में डाली गई थी, ताहम कुछ अरसा गुजरने के बाद ये सीवरेज की लाइन जो है वो बैठ गई, लेकिन हुकाम की जानिब से, इंतजामिया की जानिब, बादशाह की जानिब से यहाँ पे मजीद सीवरेज लाइन नहीं डाली गई और उसको बेहतर भी नहीं बनाया गया। ताहम यहाँ पे मजीद कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, आबादी का जोर जो है वो बढ़ चुका है, घर ज़्यादा बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये छोटी सीवर लाइन जो है ये अहले इलाका के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जब भी यहाँ पे मामूली बारिश होती है तो सूरत हाल इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं होती। ये सूरत हाल सिर्फ नेमताबाद कॉलोनी की नहीं है, नेमताबाद रोड की नहीं है, बल्कि फैसलाबाद शहर के जितने भी नशेबी इलाके हैं, जिनमें खसूसी तौर पर बात की जाए स्टेडियम की, गुलाम हमदाबाद की, झंग रोड के बहुत सारे इलाके, इसके अलावा सतियाना रोड के कुछ इलाके, शेखुपुरा रोड पर बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ जो कि प्राइवेट डेवलपर्स की जानिब से डेवलप की गई हैं, वहां पर भी सीवरेज की सूरत हाल बिल्कुल भी इससे मुख्तलिफ नहीं होती। अहले इलाका का इस हवाले से ये कहना है कि इस सीवरेज के पानी की वजह से इनका यहाँ से गुजरना मुहाल नजर आता है। यकीनी तौर पर यहाँ पर इस वक्त खड़े होना इस बदबू में मेरे लिए और अहले इलाका के लिए इंतहाई मुश्किल है। इनका ये कहना है कि हुकूमत से हम इस हवाले से इल्तजा करते हैं कि यहाँ का सीवरेज का इंतजाम जो है वो बेहतर किया जाए, ताकि अहले इलाका जो है सुख का सांस ले सकें। जब हमने अहले इलाका से इस हवाले से बात की कि आपने यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे जिनमें वासा है, ज़िला इंतजामिया है, उनसे इस हवाले से बात की, तो उनका ये कहना था कि मुतलका इंतजामिया से हमने बारहा इस हवाले से जो है वो कंप्लेंट दी है, शिकायत की है, लेकिन मुतलका इदारे किसी किस्म की कार्रवाई करने से कासिर नजर आते हैं। सीवरेज का इंतजाम तो मौजूद है लेकिन गैर फाल है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब इनसे इस हवाले से बात की कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर बल्दियात के मुंतखब नुमाइंदे हैं तो उनके पास अभी तक तो इस हवाले से इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से वो गैर फाल नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो यहाँ पे लीगी रहनुमा है, जिनमें MPAs और MNAs मियाँ फारूक और यहाँ पे नसरुल्लाह घुमन जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि वो जब से वोट लेकर यहाँ से चले गए हैं उन्होंने इस इलाके के मसाइल को नहीं देखा। ताहम उनके जब घर पे भी जाते हैं तो किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती और मसला जूं का तू है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुजरना यहाँ से मुहाल नजर आता है, क्योंकि ये एक ही तमाम कॉलोनीज़ को मिलाने वाला ये एक
बड़ा रोड है, जब उस पर पानी खड़ा होता है तो अहले इलाका को किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये तो अहले इलाका ही इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। ताहम इनका ये कहना है कि जब भी मामूली बारिश होती है मसला जूं का तूं और मसाइल का जो गढ़ बन जाता है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जिन घरों में जाने तक का रास्ता मौजूद नहीं है, खाली प्लॉट्स में सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे बाबूवाला का एक इलाका है जिसमें रुस्तम पार्क की तकरीबन 25 गलियाँ हैं। आद में तो यकीनी तौर पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो डेवलप किया हुआ है, लेकिन वो भी किसी हद तक नाकस है। आदि कॉलोनी में सीवरेज का किसी किस्म का इंतज़ाम तक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में दाखिल होना जो है वो मुहाल नज़र आता है। ताहम झंग रोड की जितनी भी प्राइवेट डेवलपर्स की जानिब से डेवलप कई कॉलोनीज़ हैं उनमें सीवरेज का नाकस निज़ाम नज़र आता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो तमाम तर जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। ताहम वासा के हवाले से अगर बात की जाए तो वासा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए मेन शाहराहों से तो पानी निकाल देता है, वहाँ पे नकास जो है उसी कोशिश की जाती है। लेकिन जो आबादी में इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं जो कि अंदरून मेन रोड से कुछ दूर फासले पर इलाके हैं, वहाँ पर सीवरेज का मसला जो है वो हल नहीं होता, जिसकी वजह से अहले इलाका की जो दरखास्तें हैं, कंप्लेंट्स भी जो हैं वो बेसूद साबित होती हैं। इनका ये कहना है कि इस हवाले से जब भी बात की जाती है तो हम दरखास्त रख ली जाती है, लेकिन इस हवाले से मसले जो हैं उनका हल नहीं निकाला जाता। जी बहुत शुक्रिया। मुकेत मलिक शेखुपुरा रोड से हमारे साथ मौजूद थे और रमजान मिर्जा नेमताबाद से हमारे साथ मौजूद थे तफसीलात से आगाह करने के लिए। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके जेर आब आ गए, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वेलकम बैक। और अब खबर है जंग से, जहां सरगोधा रोड पर दरिया चनाब का पानी मौजा कलेका के करीब पहुंच गया, जबकि शहर के हिफाजती बंद में पानी की सतह में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर नकवी से। जी मुबशर नकवी, जंग में सैलाब की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, झंग में दरिया चनाब के पानी की सतह में जो है वो इजाफा हो रहा है। त्रिमू हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 1,50,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड की गई है और मुसलसल इसमें पानी की जो सतह में इजाफा भी हो रहा है। झंग सरगोदा रोड पर जो है मौजा कलिका के करीब सैलाब का पानी जो है वो अब पहुँच चुका है। बस्ती अब मौजा पक्के वाला, मौजा दोका और इसके समेत दीगर जितनी भी करीबी आबादियाँ हैं, दर्जनों आबादियाँ हैं, वो इस वक्त पानी की जद में हैं। यहाँ पर रहने वाले जो सैकड़ों अफराद हैं वो अपनी मदद आपके साथ यहाँ से महफूज मुकामात पर नकल मकानी भी कर चुके हैं। मौजा कलेका पर यहाँ पर पानी मौजूद है और यहाँ पर दर्जनों अफराद जो हैं वो पानी में फंसे भी हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनको निकाल भी रही हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक यहाँ पर कल से लेकर अब तक 20 अफराद जो हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जबकि अगर बात की जाए सैलाब की, तो सैलाब जो है वो गढ़ मराजा के इलाकों में भी वहाँ पर जो है वो नुकसान वहाँ पे पैदा कर सकता है। वहाँ पर भी अब 22 अफराद को जो है रेस्क्यू ने जो टीमों ने जो है रेस्क्यू किया और महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। मैं सब मौजूद हूँ झंग के इलाके पिंडी मोहल्ला में हिफाजती बांध के करीब। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर पानी की जो सतह है उसमें भी मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। कल तक यहाँ पर पानी बिल्कुल लो लेवल पर था, लेकिन अभी यहाँ पर जो पिंडी मोहल्ले का जो हिफाजती बांध का जो पुल है पानी उसके साथ लग चुका है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पानी यहाँ पर तेज़ी से आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ के करीबी जो आबादी के अफराद हैं उन्होंने महफूज मुकामात की तरफ जो है वो रुख करना शुरू कर दिया है। वो अपने जानवरों समेत, मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको कि अपने जानवरों समेत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं वो भी पानी से बाहर निकल कर महफूज मुकाम की तरफ आ रहे हैं, इस खौफ से कि पानी शहर में कहीं दाखिल ना हो जाए। झंग के जो रिहायशी अफराद हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो पिंडी मोहल्ला जो हिफाजती बंद है अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो इस बात की यकीन दहानी कर रहे हैं कि पानी कितनी सतह पर है, क्या पानी शहर तक पहुँच तो नहीं पाएगा, लेकिन ये पानी अभी यहाँ पर कम है। अगर मज़ीद पानी आता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पानी यहाँ से बाहर निकल कर जो है वो सड़क पर आ सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो झंग के अवाम जो है, झंग के शहरी हैं, उनको किसी किस्म की जो है वो खौफसदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी अभी तक जो है वो इसी अपने लो लेवल पर है। पानी की सतह खासी कम है, अभी इसको खासी कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी त्रिमू हेडवर्क्स का यही कहना है कि पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तमाम रेस्क्यू 1122, लाइव स्टॉक, महकमा सेहत और तमाम टीमें जो हैं वो सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं और अपने तौर पर ये तमाम लोग जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और जिन जिन इलाकों में रेस्क्यू टीमें जो अफराद फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू की टीमें निकाल भी रही हैं। कल एक खासी पेशरफ्त जो है वो देखने में आई है। कल किसी भी जगह पर रेस्क्यू का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा था, महकमा सेहत का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा था। अब इन तमाम जगहों पर तमाम जो महकमा सेहत के जो फ्लड रिलीफ कैंप थे वो तमाम वर्किंग
تنگ پوزیشن میں ہیں، فعال ہیں، اور وہاں پر جو افراد جن کے جانور جو ہے جن کی شکایت ہے کہ انہیں ویکسینیشن فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اب ان کو ویکسینیشن بھی دی جا رہی ہے، جبکہ ایسے علاقے جہاں پہ سیلابی پانی کھڑا ہے وہاں پر جو افراد ہیں ان کو بھی ادویات کی یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے جو کیمپس ہیں وہاں پر ادویات فراہم کر دی گئی ہیں۔ جی مباشر حسن نقوی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ سرگودا روڈ پر دریا چناب کا پانی موزہ کلیکا کے قریب پہنچ گیا، جبکہ شہر کے حفاظتی بند میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں، اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف باوا چک کے رہائشیوں کا تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کے خلاف سرگودا روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے پر پولیس اور مظاہرین گتھم گتھا ہو گئے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف باوا چک کے رہائشیوں کا تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کے خلاف سرگودا روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے پر پولیس اور مظاہرین گتھم گتھا ہو گئے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف باوا چک کے رہائشیوں کا تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کے خلاف سرگودا روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے پر پولیس اور مظاہرین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی محمد کاشف، بتائیے گا پولیس اور مظاہرین کے جھگڑے کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل، فیصل آباد میں جو اغوا کے بچوں کے اغوا کی جو وارداتیں ہیں اس میں مسلسل ہی جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن پولیس کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کرتے ہیں تو انہیں زبردستی جو ہے منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ باوا چک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے مظاہرین کو جو ہے منتشر زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر مظاہرین اور پولیس اہلکار جو ہے گتھم گتھا ہوئے ہیں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے دونوں کی جانب سے۔ لیکن جو پولیس اہلکار ہے وسیم، جو کہ کانسٹیبل ہے، اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وردی بھی پھاڑ دی گئی ہے۔ تو ایسا ہی کل بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جو اغوا کی جو بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف جو تھانہ غلام محمد آباد پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا، وہاں پر بھی جو مظاہرین پر لاٹھی چارج ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو رویہ بالکل ہی مختلف ہو چکا ہے کہ اگر جو مظاہرین پولیس کے ایک تو پولیس جو بچوں کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں ان کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، لیکن دوسری جانب اگر جو مظاہرین ہیں وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں پولیس کے خلاف تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، زبردستی جو روڈ ہے اس کو کھلوایا جاتا ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی سرگودا روڈ پر جو اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی وارداتوں پر جو مظاہرین ہیں وہ تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں پر بھی جو پولیس اہلکاروں نے زبردستی روڈ کو جو ہے خالی کروانے کی کوشش کی۔ تو اسی دوران جو مظاہرین ہیں مشتعل مظاہرین نے جو کہ پولیس اہلکاروں پر دعویٰ بول دیا، جس پر جو پولیس اہلکار جو ہے زخمی بھی ہوا ہے، اس کی وردی بھی جو ہے پھاڑ دی ہے، جیسا کہ فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کس طرح سے پولیس اہلکار اور مظاہرین آپس میں گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تو فیصل آباد پولیس جو ہے مکمل طور پر ناکام ہے، اغوا کی بچوں کی جو ہے اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے ہی جو مظاہرین ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے مختلف روڈ پر اپنے گھروں کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو زبردستی جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گھروں میں ہی واپس بھیجنے کی جو کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ اس کے بعد جو ہے ان کے مقدمات بھی جو ہے درج کیے جاتے ہیں جو مظاہر جو روڈ بلاک کرتے ہیں، تو جو روڈ بلاک کرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ تو فیصل آباد پولیس کی جانب سے جو وارداتوں کو روکنے کی بجائے جو ہے مظاہرین پر الٹا ہی جو تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ کاشف، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کاشف تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف باوا چک کے رہائشیوں کا تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کے خلاف سرگودا روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے پر پولیس اور مظاہرین گتھم گتھا ہو گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41۔